So dear students, today we are going to discuss lecture 5 of ionic equilibrium. So in this lecture, we will discuss ionic product of water, that's Kw is equal to Ka into Kb. Basically, we will derive this type of equation and we'll take log of these equations and we'll see what are acidic solutions, basic solutions and neutral solutions. So let us start the topic. तो यहाँ पे हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. डायरेक्टली स्टार्ट आवर टॉपिक. वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम सर. कल 6 बजे क्लास है. अरे यार 6 बजे बोले तो शाम के 6 बजे या सुबह के 6 बजे आप बोल रहे हो? आप शाम के 6 बजे बोल रहे हो या सुबह के 6 बजे बोल रहे हो? 6 बजे क्लास नहीं है. इट विल बी ऑलवेज एट 8 ओ क्लॉक. तो बाद में अदरवाइज जो टाइम टेबल होता है दैट गेट्स डिस्टर्ब. तो स्टार्ट करते हैं. हमें डिस्कस करना है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. Let us discuss the concept ionic product of water. This will be very important concept because इस concept के basis पे हमारे जो आने वाले lectures हैं they will be based. So हमारे पास जो concept है आज का that's ionic product of water. Ionic product of water. This is our concept. डिस्कस करेंगे इस कंसेप्ट को. आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. वो फिजिक्स का मैं नहीं जानता हूँ तो वो आप सर से क्लियर कर लेना कितने बजे होगा. तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में लेट अस कंसीडर डिसोसिएशन ऑफ वाटर. हम प्योर वाटर को यहाँ पे कंसीडर करेंगे. तो प्योर वाटर जो हमारे पास होता है इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो वी कैन राइट ओवर हियर pure water is a weak electrolyte. Pure water is a weak electrolyte. So basically जो आपका pure water होता है that's a weak electrolyte. So by weak electrolyte I can apply Ostwald dilution law to this. By weak electrolyte I mean that equilibrium can be maintained over here. So pure water is a weak electrolyte and it ionizes as. So ionize कैसे होगा? Now let us see how it ionizes. So pure water it's a weak electrolyte and it ionizes as. तो मेरे पास pure water होगा. It will ionize into respective ions. So it will give me H plus ion and it will give me OH minus ion, isn't it? So pure water will ionize. It will give me H plus ion and OH minus ion. तो अगर मैं इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करूंगा, इफ आई अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ डेसोसिएशन कांस्टेंट जो k इसका होगा, डेसोसिएशन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, डेसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है उनकी मल्टीप्लिकेशन. नाउ दीज आर द प्रोडक्ट्स. सो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइड होता है व्हेन वी राइट आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेसोसिएशन कांस्टेंट. तो मैंने कहा था जब भी हम वाटर लेंगे, वाटर इज टेकन इन एक्सेस, सो दिस इज टेकन इन एक्सेस. बेसिकली इसकी जो कंसंट्रेशन है दैट ओवरऑल रिमेन्स कांस्टेंट. तो इसकी कंसंट्रेशन जो है दैट ओवरऑल रिमेन्स कांस्टेंट एंड दिस के इज आल्सो कांस्टेंट. तो हम मल्टीप्लाई इन दो कांस्टेंट्स को करेंगे. मल्टीप्लाइंग दिस कांस्टेंट with water constant because it's in excess it is taken to be constant. तो हमारे पास आएगा product of ion. The multiplication of these two constants will give rise to another constant and this constant is called Kw. So Kw over here is product of ions of water. यहाँ पे ions of water हैं basically H plus and OH minus ions. इनका product किसके बराबर होगा? Kw के बराबर होगा. Now this is the equation जो हमने यहाँ पे derive की. This is the equation जो हमने यहाँ पे derive की. इसके बहुत सारे useful applications है तो वो हमें डिस्कस करने हैं. तो हमारे पास ये वाली equation आई Kw is equal to product of concentration of H plus ions and concentration multiplied by concentration of OH minus ions. This product is called ionic product of water. So we can write over here Kw is termed as ionic product of water. Ionic product of water. Now what is ionic product of water? It is simply the product of ions of water, basically H plus or OH minus. These are the ions of the water
इनका अगर हम प्रोडक्ट लेंगे दैट्स इक्वल टू आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. दिस ionic product of water Kw, it has a particular value at a particular temperature. Ionic product of water has a particular value at a particular temperature. तो यहाँ पे लिखेंगे Kw has a particular value as a constant value. As a particular value, that means it has a constant value at a particular temperature. At a particular temperature. तो बेसिकली आई विल राइट 2 or 3 टेम्परेचर्स. तो याद आपको सबसे ज्यादा रखना है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज वैल्यू ऑफ Kw. दिस इज वैल्यू ऑफ Kw एंड दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड. तो बेसिकली अगर आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ Kw इज 0.11 into 10 raised to power minus 14. तो सिमिलरली अगर आपके पास 10 डिग्री टेम्परेचर होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपके पास टेम्परेचर होगा, then the value of Kw, here is technical problem. Do share the lecture on YouTube. क्या क्या बोल रहे हो तो मेरा जी, क्या बोल रहे हो? Here is sort of. कोई बात नहीं, ये YouTube पे भी अपलोड होगा. कोई बात नहीं, ये सारे लेक्चर्स YouTube पे अपलोड होते हैं. डोंट वरी फॉर दैट. अगर आज आपकी वहां पे प्रॉब्लम है तो कोई इश्यू नहीं है. बेसिकली यहाँ और YouTube में इतनी फर्क है, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हो. तो वहां पे आपको कमेंट में आके क्वेश्चन पूछना है. So now see over here at 10 degree centigrade, value of Kw is 0.31 into 10 raised to power minus 14. अब मुझे बताओ which value is greater. तो अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, वैल्यू ऑफ Kw थोड़ा सा बढ़ गया, मींस वैल्यू ऑफ Kw इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. क्या आप इसको लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या आप इस चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हो? अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो वैल्यू ऑफ Kw इंक्रीज, वैल्यू ऑफ Kw इंक्रीज मतलब ज्यादा आयन्स बनते हैं. तो सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, मोर वाटर विल डिसोसिएट, दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ Kw इंक्रीजेस. So see at 25 degree centigrade, we have seen in the last lecture, value of Kw comes out to be 1.0, that's 1 into 10 raised to the power minus 14. And at 100 degree centigrade, value of Kw comes out to be 7.50 into 10 raised to the power minus 14. तो यहाँ पे आप बेसिकली कंक्लूड कर सकते हो, you can conclude over here that the value of Kw varies with temperature, it increases with temperature, and at a particular temperature it has a particular value. तो हम यहाँ पे लिखेंगे Kw का जो वैल्यू है, it slightly increases with temperature, slightly increases with increase in temperature, with slight increase in temperature. तो अगर थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इट इंक्रीजेस स्लाइटली. अगर ज्यादा करेंगे तो इट इंक्रीजेस मोर, विद स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर. Increase in temperature, and at a particular temperature it has a constant value. And at a particular temperature, it has a constant value. This thing is very important. At a particular temperature it has a constant value. Kw has constant value. It has constant value at a particular temperature and at 25 degree centigrade. जो आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, that is 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपको सबसे ज्यादा याद रखना है. तो इस वैल्यू को बेसिकली आपको सबसे ज्यादा याद रखना है. तो इस वैल्यू को आपको बेसिकली सबसे ज्यादा याद रखना है. तो इस चीज को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे. आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? 12th या 11th? अरे यार क्या बोलते हो, आपको अभी पता नहीं है ये कौन सा क्लास है. आपको सिलेबस का भी पता नहीं है, ये तो 11th का क्लास है ना. सी हो रही है. तो हम इस चीज को एक्सप्लेन थोड़ा सा और करेंगे. अब मुझे बोलो, यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई? वेरी गुड.
सी इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मतलब हमारे पास एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, at 25 degree centigrade, value of Kw, it is equal to 1 into 10 to the power minus 14. तो बेसिकली Kw के बदले में क्या लिख सकता हूँ? It is the concentration of H plus ion into concentration of OH minus ion, and this is equal to 1 into 10 to the power minus 14. तो बेसिकली यहाँ से आप H plus ion की कंसेंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन निकाल सकते हो। नाउ सी कैसे निकाल सकते हैं? लेट इट्स कंसेंट्रेशन इज x and the concentration of OH minus ions is x. So this will be equal to 10 raised to the power minus 14. 1 into 10 raised to the power minus 14 is equal to 10 raised to the power minus 14. तो इनको अगर मल्टीप्लाई करो you will get x square is equal to 10 raised to the power minus 14. So x को स्क्वायर को खत्म करो, this will be root of 10 raised to the power minus 14. तो रूट का रेज़ टू पावर का अगर रूट निकालना होता है तो इस पे डिवाइड बाय 2 करो, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7. तो यहाँ से आपने क्या इंफॉर्मेशन गैदर की? यहाँ से आपने क्या इंफॉर्मेशन गैदर की? देखो यहाँ पे हमें ये वाली इंफॉर्मेशन, इसकी कंसेंट्रेशन x है, इसकी कंसेंट्रेशन x है. सो आई विल राइट कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू x व्हिच कम्स आउट टू बी 10 रेज़ टू पावर माइनस 7. So similarly concentration of OH minus ion which is equal to x, तो यहाँ पे x के बराबर है, and this is also equal to 10 raised to power minus 7. So that is why concentration of H plus ions into concentration of OH minus ions comes out to be 10 raised to power minus 7 into 10 raised to power minus 7. Basically that comes out to be 10 raised to power minus 14. Have you got this point? Have you got this point? क्या आपको ये वाला point समझ में आ गया? Have you got this point? Have you got this point? This is very important point. Very nice, very nice, very nice guys. बहुत ही बढ़िया. तो यहाँ पे हमने देखा concentration of H plus ions in pure water and concentration of OH minus ions in pure water, that's equal to 10 raised power minus 7 and 10 raised power minus 7. Means in pure water आपके पास जो H plus ion की concentration है और OH minus ion की concentration है, that's equal. तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन, जितने ज्यादा H प्लस आयन निकलते हैं उतना एसिडिक कैरेक्टर होता है, जितना आपका OH माइनस आयन निकलते हैं उतना बेसिक कैरेक्टर होता है. तो यहाँ पे द कंसेंट्रेशन इज सेम, देयरफॉर दिस सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल सॉल्यूशन. तो इन केस ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन आपका जो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन और OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल, दैट विल बी 10 रेज़ टू पावर माइनस 7. तो यहाँ पे इस चीज को आप नोट करना और यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. हम आगे चलते हैं थोड़ा सा इसमें, हम आगे चलते हैं इसमें थोड़ा सा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले. हो गया सर? ओके, वेरी गुड. तो नेक्स्ट में चलूंगा. सो इन केस ऑफ प्योर वाटर आई विल राइट कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन will be equal to concentration of OH minus ion, and this will be equal to 1 into 10 raised to power minus 7. This will be equal to 1 into 10 raised to power minus 7. Have you got this? तो यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए. This is equal to 10 raised to power minus 7. तो ये हमारा बराबर आता है 10 raised to power minus 7 आयन. तो नाउ सी ऑन दिस बेसिस अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूशन होगा ना, मेरे पास सोल्यूशन जो होंगे, मेरे पास सोल्यूशन जो होंगे दे विल फॉल इनटू 3 कैटेगरी. Now first category will be when concentration of H plus ion is greater than that of concentration of OH minus ion. That means concentration of H plus ion it is greater than that of concentration of OH minus ion. मतलब आपके solution में H plus ion ज्यादा है. What does that mean? आपके solution में H plus ion ज्यादा है. That means solution is more acidic. So in this case जो आपका solution होगा that is acidic solution. That is acidic solution. Now आप मुझे बताओ H plus आयन की concentration 1 into 10 raised power minus 7 है neutral solution में. अगर acidic होगा then it should be less than that of 10 raised to power minus 7. Therefore concentration of H plus ion should be greater than, it should be greater than 1 into 10 raised power minus 7.
क्या मैं 10⁻⁻7 का ग्रेटर वैल्यू ऐसे लिखूंगा? दैट मीन्स इट शुड बी 10⁻⁻6, इट शुड बी 10⁻⁻5. दीज आर ग्रेटर वैल्यूज. माइनस में स्मॉल वैल्यू ग्रेटर होता है. एंड 10⁻⁻4, 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, 10⁻⁻1. अगर आपके पास H प्लस आयन के ये वैल्यूज आते हैं, देन द सॉल्यूशन इज एसिडिक सॉल्यूशन. तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन होगा बिकॉज दीज वैल्यूज आर ग्रेटर देन 10⁻⁻7. तो अगर आपके पास H प्लस आयन के वैल्यूज दे आर ग्रेटर देन 10⁻⁻7, तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन होगा. मतलब solution will be acidic when H plus ion concentration is greater than 10⁻⁻7. That means it should have 10⁻⁻6, -5, -4, -3, -2, -1, even 10⁻⁻6.8, 6.9. They are acidic solution. यहाँ तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए. यहाँ तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए. तो अगर आपके एसिडिक सॉल्यूशन में कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज्यादा है, तो what should be the concentration of OH minus ions in acidic solution? तो मुझे बता, अगर आपका O एसिडिक सॉल्यूशन है, OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए? इट शुड बी लेस देन दैट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. इट शुड बी लेस देन दैट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन. तो एसिडिक सॉल्यूशन में बेसिकली कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ OH माइनस. नंबर सेकंड केस हमारे पास आता है, अगर आपका H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इट इज लेस देन दैट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन. तो इन दिस केस जो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन है दैट इज मोर. अगर कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन ज्यादा है, अगर कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन ज्यादा है, इन दैट केस जो हमारा सोल्यूशन होगा दैट विल बी बेसिक सोल्यूशन. द सोल्यूशन विल बी बेसिक इन दिस केस. तो आपका सोल्यूशन बेसिक होगा अगर कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन ज्यादा होगा कंपेयर टू दैट ऑफ H प्लस आयन. तो आपको पता है इन केस ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन H प्लस आयन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन एंड दिस इज इक्वल. ये बेसिकली इक्वल होते हैं. दीज आर इक्वल टू 1 into 10⁻⁻7. तो अगर 10⁻⁻7 से ज्यादा होंगे, मतलब 10⁻⁻6, 10⁻⁻5, 10⁻⁻4, 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, 10⁻⁻1. In these cases, concentration of H plus ion is greater than that of concentration of OH minus ion. In these cases, जो हमारे solutions होंगे, they will be acidic. Have you got it? In these cases, जो हमारे solutions होंगे, they will be acidic. तो वो acidic होंगे. Now, if the concentration of OH minus ion is greater, अगर concentration of OH minus ion ज्यादा होगा than that of H plus ion, मतलब if the concentration of OH minus ion, that's 10 raised to power minus 8, 10 raised to power minus 9, 10 raised to power minus 10, 10 raised to power minus 11, 10 raised to power minus 12. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 raised to power minus 13, 10 raised to power minus 13, 10 raised to power minus 14. So all these will be, these solutions will be basic. यहाँ से जो solution की concentration है, ये OH minus ion की concentration है, these solutions will be basic. So for basic solution is आपकी concentration greater, this should be like this, 10 raised to power minus 8 to 10 raised to power minus 14. And for acidic solutions, it should be this 10 raised to power minus 6 to 10 raised to power minus 1. And this is neutral solution. So case number 3 यहाँ पे आता है neutral solution. Basic solution, very good, very good. Case number 3 यहाँ पे आता है neutral solution. Case number 3 आता है यहाँ पे neutral solution. तो neutral solution basically ये वाला solution होगा जब concentration of H plus will be equal to concentration of OH minus and it will be equal to 10 raised to power minus 7. तो यहाँ पे बेसिकली pH का कंसेप्ट आता है. pH का कंसेप्ट यहीं से आता है, तो उसको थोड़ा लेटर हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे मुझे आप एक बात बता, अगर हम इससे डाउन जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, तो डाउन दिस अगर हम जाते हैं एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, एसिडिक नेचर विल इंक्रीज. तो अगर हम ऊपर जाएंगे बेसिक नेचर विल इंक्रीज, बेसिक नेचर विल इंक्रीज. तो मुझे आप बता इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे आप बता इस क्वेश्चन का आंसर.
मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर बता, ये आपने बॉटनी में भी कहीं पढ़ा होगा, जब आप वाटर पोटेंशियल डिस्कस करते हो वहां पे भी इसका कंसेप्ट आता है, या आप वो कार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन पढ़ते हो एटीपी जनरेशन में, वहां पे भी इसका कंसेप्ट आता है। तो मेरे पास x, y एंड z, दीज आर थ्री सॉल्यूशन है। इसमें कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज 10 raised to power minus 5। इसमें कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज 10 raised to power minus 4, and इसमें concentration of H plus ion 10 raised to power minus 2। This is the concentration of H plus ion। तो मुझे बता, what is the order of acidic nature of X, Y and Z? What is the order of acidic nature of X, Y and Z? तो मुझे tell me what is the order of acidic nature of X, Y and Z? Very good। This is the concentration of H plus ion given। तो आपको बताना है order of acidic nature of X, Y and Z। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे नाहिदा जी, महक जी, और किसने आंसर दिया, शुगुप्ता, हामिद, हामिद ने आंसर दिया एक्स वाई जेड ओ एस, जेड विल बी मोर एसिडिक। तो जिसकी H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है दैट विल बी मोर। तो 10 raised to power minus 2 will be more acidic than 10 raised to power minus 4. This will be more acidic than 10 raised to power minus 5। Basically, this stands for Y. This will be more acidic than Z, and this stands for X. This will be more acidic than X। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आदिल, वेरी गुड। Y Z X, वेरी गुड। तो सिमिलरली हम बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ऑन बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो सिमिलरली अगर मेरे पास तीन बेसिस है, मेरे पास बेसिस है फॉर एग्जांपल ए, बी एंड सी। इसकी कंसेंट्रेशन है 10 रेज पावर माइनस 30, और इसकी कंसेंट्रेशन है 10 रेज पावर माइनस 8, इसकी कंसेंट्रेशन है 10 रेज पावर माइनस 12। तो मुझे बता व्हाट इज द बेसिक नेचर। तो बेसिक ऑर्डर इनमें क्या होगा, व्हाट विल बी द बेसिक ऑर्डर। तो इनमें बेसिक ऑर्डर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इनमें बेसिक ऑर्डर क्या होगा? वेरी गुड। ए सी बी शुगुफ्ता, सी ए बी, ए सी बी शुगुफ्ता, जाकिर, ए सी बी। अच्छा सी यहाँ पे सबसे ज्यादा है 10 रेज पावर माइनस 13, सो दिस विल बी बेसिक। ओएच की कंसेंट्रेशन 10 रेज पावर 8 से ऊपर जाती है, तो यहाँ से जिसका ज्यादा वैल्यू आता है 10 रेज पावर माइनस 14 का वैल्यू ऊपर की तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। देयरफॉर दिस इज मोर बेसिक compared to that of C, which is more basic compared to that of B। तो जिस किसी ने भी ये वाला आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया, ACB, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट ये आंसर दिया है, तो बहुत ही बढ़िया काम किया आपने, बहुत ही बढ़िया काम किया आपने। तो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड हो गया। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करेंगे, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो, हम इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है सर, ओके। नाउ लेट मी एक्सप्लेन वन मोर थिंग। अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है, आई हैव अ सोल्यूशन, आपके पास एक सोल्यूशन है, लेट द सोल्यूशन इज एक्स सोल्यूशन। मैं इस सोल्यूशन का नाम देता हूँ, इट इज एक्स सोल्यूशन। तो मैं कहूंगा इसमें H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। कैन यू डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन दिस सोल्यूशन? कैन यू डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन दिस सोल्यूशन? ना ये वो स्टेटमेंट है जो मैंने कहा था, इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, प्रोडक्ट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। तो इसका प्रोडक्ट जो होगा Kw, that will be equal to concentration of H plus ion into concentration of OH minus ion। तो बेसिकली आपको पता है Kw का वैल्यू 10 रेज पावर माइनस 14 होता है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड में बात कर रहा हूँ, आई विल टॉक ऑफ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलवेज। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन दिया हुआ है and concentration of OH minus ion निकालना है। So we can write concentration of OH minus ion will be equal to, so we can write concentration of OH minus ion, it will be equal to 10 raised to power minus 14 divided by concentration of H plus ion, that's 10 raised to power minus 2। तो minus 2 को ऊपर ले जाओ, this will be 10 raised to power minus 14 into 10 raised to power plus 2, and this will be 10 raised to power minus 12।
तो आपके पास बेसिकली क्या आएगा, आपके पास कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इट विल कम आउट टू बी 10 raised to the power minus 12. हैव यू गॉट इट? वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने आंसर्स पहले ही दिए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब आप यू आर वेरी वेल इक्विप्ड विद दिस, मतलब अब आपको ये वाले क्वेश्चंस आएंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देंगे, लेट अस टेक द क्वेश्चन, कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन H plus ion concentration and hydroxyl ion concentration, OH minus ion concentration. More appropriately it should be written like this. अगर हम ऐसे लिखेंगे तो कंसेंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस ब्रैकेट स्टैंड्स कंसेंट्रेशन एंड OH आयन कंसेंट्रेशन इन, तो किसमें आपको निकालना है, 0.01 मोलर HNO3, 0.01 मोलर HNO3। क्या आप ये निकाल सकते हो? नाउ सी, मेरे पास एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको, मेरे पास HNO3 है। नाउ दिस विल डिसोसिएट, इट विल गिव मी H प्लस प्लस NO3 माइनस। तो यहाँ पे मेरे इसके कितने मोल्स हैं, 0.01, दिस इज इनिशियल। तो आफ्टर इक्विलिब्रियम दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आफ्टर इक्विलिब्रियम दिस विल डिसोसिएट। तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में अल्फा जो होता है, अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1, तो इट विल डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली। अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे 0 रहेगा, इसका बनेगा 0.01 और इसका बनेगा 0.01। वेरी गुड। तो अगर हमें H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन निकालनी है, तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन विल बी इक्वल टू दिस 0.01, that will be equal to 1 divided by 100, means that will be equal to 1 into 10 raised to power minus 2. If you know the H plus ion concentration, you can determine OH minus ion concentration. That will be equal to Kw divided by H plus ion concentration using this formula. So Kw is 10 raised to power minus 14, H plus is 10 raised to power minus 2. So this will become 10 raised to power minus 12. So basically how this question is to be solved, this is the method. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मुझे ये वाला क्वेश्चन करके देखो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में परेशानी नहीं है, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तब हमें ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यूज करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई मैंने कहा था पहले ही लेक्चर में कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे आने वाले क्वेश्चनों में हो सकता है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस भी हों। तो फॉर एग्जांपल, डिटरमाइन the H plus and OH minus ion concentration. So determine H plus ion and OH minus ion concentration in 0.001 molar KOH. 0.001 molar KOH solution. 0.001 molar KOH solution at 25 degrees centigrade. So this is also a strong electrolyte because group first and group second hydroxides they are strong bases. तो क्या आप ये क्वेश्चन निकालोगे? तो मुझे पता H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या आएगी, OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन क्या आएगी। तो मुझे पता जल्दी से व्हाट विल बी द H प्लस एंड OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन। तो बेसिकली यहाँ पे आपको KOH लेना है, it will dissociate into K plus and OH minus. It's a strong electrolyte, therefore it will dissociate completely. तो इनिशियली इसके 0.001 मोल्स थे, इसका 0, इसका 0, इसका 0 रहेगा। आफ्टर सर्टेन टाइम इसका बनेगा 0.001 और इसका बनेगा 0.001। तो बेसिकली आप यहाँ से निकाल सकते हो, क्या यहाँ से आप निकालोगे, व्हाट विल यू डिटरमाइन फ्रॉम हियर। आप यहाँ से OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन निकालोगे, बिकॉज दिस कंसेंट्रेशन इज OH माइनस, आपके पास H प्लस नहीं है, this will be concentration of OH minus. So you can write concentration of OH minus is equal to 0.001. That means 1 divided by 1000. That means 10 raised to power minus 3. This is the concentration of OH minus ion. तो अब मुझे बता concentration of H plus ion किसके बराबर निकलेगा? Concentration of H plus ion किसके बराबर निकलेगा? तो we know that Kw is equal to concentration of H plus ion. I'll rub it over here. क्या ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गई?
दीज आर बेसिक क्वेश्चन जहां से हमारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले आपको मैं यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ सो दैट आपको किक मिलेगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस थिंग KW इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो बेसिकली आपके पास OH माइनस आयन है, यू हैव टू डिटरमाइन कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, दिस विल बी इक्वल टू KW और उसको डिवाइड करो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो KW आपके पास है 10 रेज पावर माइनस 14 डिवाइड बाई 10 रेज पावर माइनस 3। तो 10 रेज टू पावर माइनस 14 इसको ऊपर ले जाओ इंटू 10 रेज टू पावर प्लस 3। तो दिस विल बिकम 10 रेज टू पावर minus 11. So this will be the H plus ion concentration. H plus ion concentration 10 raised power minus 7 से बहुत ज्यादा है, इसलिए this is मतलब greater than sorry बहुत कम है 10 raised power minus 7 से। तो हम कहेंगे this solution will be basic solution because अगर 10 raised power minus 7 होता तो न्यूट्रल, इससे कम अगर होता तो एसिडिक, अगर इससे ज्यादा होगा H plus ion की कंसेंट्रेशन तो आप यहाँ पे कहोगे दिस विल बी अ बेसिक सोल्यूशन। तो यहाँ पे ये बेसिक सोल्यूशन होगा। हैव यू गॉट इट? वेरी गुड। 10 रेज़ टू पावर माइनस 11, वेरी गुड वेरी गुड, दिस विल बी बेसिक सोल्यूशन। मुझे लगता है एक बार मुझे फिर वो वाली डायग्राम बनानी है, मुझे लगता है वहां पे मैंने थोड़ा मिस्टेक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं वो वाली डायग्राम एक बार फिर बनाऊंगा यहाँ पे। मुझे इन टर्म्स ऑफ OH वो नहीं लिखना था। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैं यहाँ पे उसको एक बार फिर लिखूंगा। ये मेरे पास कंसेंट्रेशन है, ये मेरे पास कंसेंट्रेशन है, दिस इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। When the concentration of H plus is 10 raised power minus 7, it is neutral solution. तो यहाँ से मेरा डिक्रीज हो जाएगा। तो इट इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, इससे ज्यादा है। दिस इज 10 रेज़ टू पावर माइनस 5, this is 10 raised to power minus 4, this is 10 raised to power minus 3, this is 10 raised to power minus 2, this is 10 raised to power minus 1 and this is 10। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू यहाँ ये दिस इज इंक्रीज इन द वैल्यू। तो यहाँ से इसका वैल्यू हम डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे 10 raised to power minus 8, 10 raised to power minus 9, 10 raised to power minus 10, 10 raised to power minus 11, 10 raised to power minus 12, 10 raised to power minus 13, 10 raised to power minus 14। These all represent H plus ion concentration। तो वहां पे मैंने OH minus ion की concentration निकाला। These all you can write it in terms of OH minus ion as well। तो थोड़ा सा confusion ना होने की वजह से मैंने एक बार फिर इसको बताया। तो आप लिख सकते हो in terms of OH minus ion भी। तो यहाँ पे concentration of H plus ion, if it comes out to be less than 10 raised to power मतलब like this 10 raised to power minus 7 से like these values, then the solutions are acidic। if it comes out to be this, then the solutions are basic। तो मेरा जो यहाँ पे आता है 10 raised to power minus 11, therefore this solution is basic solution। have you got it now? have you got it now? क्या अब ये बात आपको समझ में आ गई? मुझे बताइए ये बात आपको अब क्लियर हो गई? वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओएस नाइदा तौसीफ फैसल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, आपको ये बात समझ में आ गई। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा। नाउ सी के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ये वाली रिलेशन कल मैंने बताई कि ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। Actually, dissociation constant of acid into dissociation constant of base it's equal to Kw, ionic product of that acid and base। क्या ये बात कल मैंने बताई थी? क्या ये बात आपको याद है? ये वाला चीज कल मैंने बताया। वेरी गुड, अगर आपको याद है ये चीज तो इस इक्वेशन का मैं लॉग लूंगा। तो यहाँ से लॉग ले लो, लॉग ऑफ के ए इंटू लॉग ऑफ के बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ के डब्ल्यू। वेरी गुड, तो मैंने इसका लॉग लिया। नाउ बेसिकली यहाँ मेरे पास ए और बी है, तो यहाँ पे एक फार्मूला है लॉग ए इंटू लॉग बी, इसके बराबर होता है लॉग ए इंटू लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी।
log a into log b is equal to log a plus log b। ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज लॉगरिथमिक फार्मूला। तो log a फार्मूला होती है log a into log b is equal to log a plus log b। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log of ka plus log of kb is equal to log of kw। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फिर, बिकॉज log a into log b is equal to log a plus log b। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ये कैसे आ गया मेरे पास log के a प्लस log के b, बिकॉज log a into log b is equal to log a plus b। वेरी गुड, दिस इज इक्वल टू log a plus b। तो इस सारे को मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा। कैन आई राइट दिस देन? log लिया, log टू द बेस 10 ऑफ के a, आप यहाँ पे लिख सकते हो टू द बेस 10 into log to the base 10 of kb is equal to log to the base 10 of kw। बेसिकली सिंपल सी रिलेशन है, इक्वेशन है मेरे पास, इसका लॉग लिया फ्रॉम ऑल साइड्स। तो मेरे पास इक्वेशन है, इसका लॉग लिया मैंने ऑन बोथ साइड्स। तो बेसिकली दिस बिकम्स log a into log b। so this becomes log a into log b। so log a into log b is equal to log a plus log b। so this is log of k plus log to the base 10 kb, it is equal to log of 10 kw, log to the base 10 kw। तो यहाँ तक मैंने आपको बात समझाई थी। अच्छा, इस सारी इक्वेशन का मैं नेगेटिव साइन लेना होगा। आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद नेगेटिव साइन। तो इस सारी इक्वेशन का मैं नेगेटिव लॉग लूंगा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब यहाँ पे अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो यू विल गेट माइनस लॉग ऑफ के ए प्लस यहाँ पे फॉर्मूला रहेगी इंटू माइनस लॉग टू द बेस 10 के बी इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 के डब्ल्यू। अब मैंने ये माइनस क्यों लिया, इसका एक लॉजिक है, इसका एक लॉजिक है जो आने वाले लेक्चर्स में हमें बहुत ही जरूरत पड़ेगा, एवन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगा। नाउ व्हाट इज दिस माइनस लॉग ऑफ के ए? इट इज कॉल्ड पी के ए। it is called pKa। now what is pK? pK is negative logarithm of k, nothing। pK is negative logarithm of k, कुछ भी नहीं है। pK क्या है? negative logarithm of k plus negative logarithm of kb, it is called pkb। negative logarithm of kw, it is called pkw। now this comes out to be the new equation। now what is negative logarithm of k? It's called pk। what is negative logarithm of kb? It's called pkb। and what is negative logarithm of kw? It's called pkw। now this is so simple, isn't it? this is so simple। तो इस इक्वेशन से बेसिकली हमने ये वाली इक्वेशन डेराइव की, इस इक्वेशन से हमने बेसिकली ये वाली इक्वेशन डेराइव की। दिस विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हमें हर वक्त जरूरत पड़ेगी आज के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो pk इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के। क्या आपको पता है अगर के ए का वैल्यू ज्यादा होगा, के ए का वैल्यू ज्यादा होगा, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज मोर। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन एसिड इज मोर, देन मोर H प्लस आयन्स विल बी लिबरेटेड। अगर ज्यादा H प्लस आयन्स लिबरेट होंगे तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। क्या ये हमारे पास कंसेप्ट है? इतना कंसेप्ट आपको याद है? वेरी गुड, इतना कंसेप्ट आपको याद है। मतलब अगर के ए ज्यादा होगा आपका, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलीज ऑफ H प्लस आयन व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। वेरी गुड, बट दिस के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। यहाँ पे नेगेटिव लॉगरिथम मींस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। मतलब क्या है, अगर आपका के ए ज्यादा होगा तो आपका पी के कम होगा। अगर आपका के ए ज्यादा होगा तो आपका पी के कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, जीओसी में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा ये। अगर आपका के ए ज्यादा है तो आपका पी के कम होगा। मतलब अगर आपका सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा तो अगर आपका पी के ए कम है देन ज्यादा H प्लस आयन निकलेंगे, देन मोर एसिडिक, देन मोर एसिडिक, देन मोर एसिडिक। हैव यू गॉट दिस? हैव यू गॉट दिस? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? और मैं इसको थोड़ा सा और रिलेट करूंगा, यहाँ पे मैं के ए लिखूंगा। के ए ज्यादा
pKa कम, H प्लस ज्यादा, मोर एसिडिक। तो एक और चीज ऐड कर सकते हो, मोर विल बी अल्फा। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई, मतलब सारे कंसेप्ट एक ही रिलेशन में आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुगुफ्ता, महक, जाकिर, वेरी गुड। तो सिमिलरली जो आपका के बी है, व्हाट इज के बी? के बी इज डेसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। मतलब अगर आपका के बी ज्यादा है तो ज्यादा ओ एच माइनस आयन निकलेंगे, तो ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा, तो ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। बट दिस के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी। मतलब अगर आपका के बी ज्यादा है, पी के बी कम होना चाहिए, बिकॉज इट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी। पी के बी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पी के बी कम होना चाहिए, पी के बी कम होना चाहिए। हैव यू गॉट दिस? हैव यू गॉट दिस? तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल कुछ कंपाउंड्स है, मेरे पास कुछ कंपाउंड्स है, CH3, CH2OH। दिस इज अल्कोहल, इट इज स्लाइटली एसिड। तो मेरे पास दिस इज इथेनॉल, यू ऑल नो दिस इज इथेनॉल, दिस इज कंपाउंड ए, एंड दिस इज कंपाउंड बी, CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे OH। दिस इज क्लोरो इथेनॉल, हाइड्रोजन के बदले यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगाया, तो दिस विल बी बी। तो सी के केस में मैं इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करूंगा, यहाँ पे एक और क्लोरीन लगाऊं। अगर मैं बताऊंगा, अगर मैं आपको बोलूंगा, तो इस सोल्यूशन का अगर मैं आपको बोलूंगा, इसका के ए इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस, फॉर एग्जांपल 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, 10 रेज़ टू पावर माइनस 9। तो फॉर एग्जांपल इसका के ए 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 है। फॉर एग्जांपल इसका के ए 10 रेज़ टू पावर, इसका ज्यादा होगा, 10 रेज़ पावर माइनस 19, 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इनका पी के ए ऑर्डर? क्या आप इनका पी के ए ऑर्डर बता सकते हो? तो बेसिकली मुझे आपको सिखाना है पी के ऑर्डर आप किसी भी कंपाउंड का ऑर्गेनिक में फिर कैसे निकालोगे। तब तक आपको ये याद रखना है। तो उस वक्त मैं इसको एक बार फिर बताऊंगा, लेकिन उस वक्त मैं एक ही रिलेशन बताऊंगा। मैं इतना कहूंगा के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। अगर के ए ज्यादा है, पी के कम हो। तो सी हम क्या करेंगे, हमें पी के निकालना है। हम कभी भी पी के नहीं निकालेंगे, हम के ए निकालेंगे। हम के ए का ऑर्डर निकालेंगे, के इज गिवन, के इज गिवन, के इज गिवन। तो किसका के ए ज्यादा है? इसका के ए वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस। जिसका ज्यादा के ए वैल्यू उसका कम पी के वैल्यू, जिसका ज्यादा के ए वैल्यू उसका कम पी के वैल्यू। हैव यू गॉट इट? इसका ज्यादा के ए वैल्यू उसका कम पी के वैल्यू। तो बेसिकली मुझे आपको बताना था, अगर आपको पी के ए निकालना होगा, अगर आपको पी के ए निकालना होगा, तो आप के ए निकालो, आप के ए निकालो, फिर उसका रिवर्स ले लो, उसका उल्टा ले लो, देन द क्वेश्चन विल बी 100% करेक्ट। हैव यू गॉट इट? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी ए सी, यार दिस विल बी, सी विल हैव मोर के compared to that of B, which will have more compared to that of A। तो आंसर क्या आएगा? C का सबसे ज्यादा की है, 10 raised power minus 4 is a very large as compared to 10 raised power minus 19। So basically this is 0.0004। This will be 0.19 times 0, then it will be 19। This will be 0.14 times like this, then it will be 14। Have you got it? Sorry, 0.001 लाइक दिस। हैव यू गॉट इट? तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा। अगर इसका के ए, दिस इज के ए और के ए ऑफ सी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी व्हिच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए। तो पी के ए किसका ज्यादा होगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। सिंपल, वेरी सिंपल। तो इट्स वेरी सिंपल ओवर हियर, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। नाइदा जी पी के ए निकाला, के ए निकालना है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो ऐसे हम सीखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, that will be pH of solution, pH of solution।
पीएच ऑफ सॉल्यूशन, तो मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा आज, पीएच जो होता है इट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। बस यहाँ पे मैं एक फार्मूला बताऊंगा जो आपको कल के लिए याद रखनी है। लॉग m रेज टू पावर n किसके बराबर होता है? जब भी ऐसा कोई कंपाउंड आए, जब भी ऐसी कोई फार्मूला आएगी लॉग में, तो इस n को आगे ले जाना है, बस n को आगे ले जाओ, दिस विल बी इक्वल टू n log m। मुझे बता, लॉग ऑफ 10, सॉरी, मुझे बता लॉग ऑफ 10 रेज टू पावर -4 किसके बराबर है? लॉग ऑफ 10 रेज टू पावर -4 किसके बराबर होगा? अरे जावेद साहब, अब क्या है ये? log ऑफ 10 रेज टू पावर -4, दिस इज m रेज टू पावर n, तो -4 को यहाँ लाओ, दिस विल बी -4 log 10। और एक फार्मूला याद रखो, log 10 इज इक्वल टू 1, log 10 इज इक्वल टू 1। बाकी लॉग्स की मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा कैसे याद रखें। 4 log 10, तो log 10 किसके बराबर है? log 10 1 के बराबर होता है, log 10 1 के बराबर होता है, दिस विल बी 4 into 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो अगर आपके पास H प्लस आयन कंसेंट्रेशन दी हुई होगी, तो यू कैन इजीली डिटरमाइन पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। उस चीज को हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हाउ वी कैन डिटरमाइन पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो पीएच पे हम एक दो लेक्चर्स देंगे, बिकॉज इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे आर बेस्ड ऑन पीएच एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इस पे डेफिनेटली ये क्वेश्चन हर किसी साल में आता है। एवरी ईयर देयर विल बी वन क्वेश्चन ऑन पीएच ऑफ सॉल्यूशन, एवरी ईयर, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका जेईई हो, चाहे आपका नीट हो, चाहे आप पीजी केमिस्ट्री के लिए एग्जाम देते हो, एमएससी केमिस्ट्री के लिए एग्जाम देते हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हो, उसके लिए आपको पीएच में से क्वेश्चन डेफिनेटली होता है। तो विल सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देयर आर, बेसिकली 7 8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन पीएच। तो दो लेक्चर्स पे 2 दिन में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। थैंक्स फॉर वाचिंग। जिन बच्चों ने आज का लेक्चर वॉच नहीं किया, वो एक बार इसको YouTube पे जाके देखेंगे, अदरवाइज कल का लेक्चर पढ़ना उनके लिए कोई भी फायदा नहीं होगा। तो लेट अस स्टॉप इट ओवर हियर, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, इजंट इट? शैल वी स्टॉप इट? थैंक यू सर। थैंक यू सर। अरे साहिल क्या कहते हो सर? शाइस 4 आए, हाँ 4 आएगा। सर ओके, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर, थैंक्स टू यू ऑल।